Hello and welcome once again to my classes. Hope you all are well and studying at home. Students, from 1st of June, we will be meeting on Zoom app for the revision of the chapters we have studied till 31st of May. So all of you complete your work in your notebooks till then. As you know, in my previous video, I was explaining you the chapter Deep Water by William O. Douglas. Till now, we have studied both the incidents of Douglas' early life that made him scared of water, but later he set his mind for learning swimming, and for this he hired an instructor and learned the same. But still, he was not satisfied with his perfection of swimming. Douglas used to think, what will happen if he becomes terror stricken when alone? He wanted to he wanted to throw out each and every bit of fear which was left in him. So, students, let's continue further. You can see page number 28, last line. So I went to Lake Wentworth in New Hampshire, dived off a dock at Triggs Island, and swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island. I swam the crawl, breaststroke, side stroke, and backstroke. Only once did the terror return, when I was in the middle of the lake. I put my face under and saw nothing but bottomless water. The old sensation returned in miniature. I laughed and said, "Well, Mr. Terror, what do you think you can do to me?" It fled and I swam on. So, students, in these lines, the Douglas is telling that after learning swimming by the instructor, he was not satisfied. Some fear was still remaining in him. So, he was not satisfied with that. He wanted to take out even the smallest pinch of fear in him. वो अपने अंदर से एक छोटे से छोटा पॉइंट भी जो भय का था, जो खौफ का था पानी से, उसको निकालना चाहता था. सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर. अब क्या होता है, ये उसी बचे हुए खौफ को निकालने के लिए लेक वेंटवर्थ जाता है. लेक वेंटवर्थ, इट इज़ located in the eastern New Hampshire and it is in United States, US. So there he went. He dived off a dock. Dived off a dock means to jump or leap off in area of water in a port that can be closed off and that is used for putting goods onto. तो ये वहाँ डॉक पे जाता है, ठीक है. वहाँ जाके ये अपनी स्विमिंग की प्रैक्टिस करता है एट ट्रिग्स आइलैंड. नाउ व्हाट इज़ ट्रिग्स आइलैंड? ट्रिग्स आइलैंड भी एक आइलैंड है एंड दैट टू इज़ इन न्यू हैम्पशायर, यूनाइटेड स्टेट्स. ये वहाँ भी जाता है एंड वहाँ जाके ही स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड. अब ये ट्रिग्स आइलैंड पे जब जाता है तो ये वहाँ से 2 miles की लंबी स्विमिंग करते हुए स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक पहुँच जाता है. स्टैम्प एक्ट आइलैंड, इट इज़ एन अनडेवलप्ड lake. You can say it is an undeveloped place on Lake Wentworth and it is intended to serve as a wildlife. तो ये अपनी स्विमिंग की प्रैक्टिस को
देखने के लिए एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक स्विमिंग करते हुए जाता है। आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। अब जब इसने स्विमिंग की 2 माइल्स की, उस बीच इसने जितने भी स्ट्रोक्स होते हैं, स्ट्रोक्स मतलब कि द वे ऑफ स्विमिंग, द आर्ट ऑफ स्विमिंग की किस किस टाइप से, किन किन स्ट्रोक्स के इस्तेमाल से, स्ट्रोक्स मतलब कि हाथों की और टांगों की मूवमेंट्स जिससे कि स्विमिंग की जाती है, उसमें क्रॉल, ब्रेस्ट, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक सभी आते हैं। तो इसने जब ट्रिग्स आइलैंड से स्टैम्पैक्ट आइलैंड तक स्विमिंग की, तो इसने सभी दाव पेच, ये जितने भी टाइप्स की जो एक्ट्स होते हैं, जो स्विमिंग स्टाइल्स होते हैं, ये सब उसने यूज़ किए। Only once did the terror return when I was in the middle of the lake. अब ये कहता है कि वो 2 माइल्स की स्विमिंग में केवल एक ही पल ऐसा था जब वो इसका ओल्ड खौफ, जो पानी का भय था, जो फियर ऑफ वाटर था, वो वापस लौट के आया। वो कौन सा टाइम था? जब ये मिडल ऑफ द लेक था, यानी कि लेक के बीचों बीच में ये मौजूद था। आई पुट माई फेस अंडर, तब इसने क्या किया, अपने फेस को पानी के नीचे डाला, एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। अब इसने क्या किया, जब इसे ऐसा महसूस हुआ, तब इसने अपने फेस को पानी के नीचे डाला एंड वहाँ पे बॉटमलेस वाटर को देखा। बॉटमलेस वाटर यानी कि जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई बॉटम नहीं हो, जिसका कोई अंत ना हो, मतलब जो उसकी डेप्थ थी वो किसी को नहीं पता थी। तो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज बॉटमलेस वाटर हियर। सो उसने उसको देखा। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न्ड इन मिनिएचर। ओल्ड सेंसेशन मतलब कि वो ओल्ड एबिलिटी टू फील समथिंग फिजिकल बाय टचिंग, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सेंसेशन हियर, एंड विच वॉज द ओल्ड फीलिंग, जो उसका ओल्ड फीलिंग थी, जो उसको खौफ लगता था, वो लौट आई थी इन मिनिएचर। एंड मिनिएचर मीन्स अ स्मॉल वर्जन ऑफ एनीथिंग। तो वो आई थी लौट के, वो खौफ आया था लौट के, बट इट वॉज इन अ स्मॉल अमाउंट। सो आई लाफ्ड एंड सेड, जब ऐसा इसको लगता है तो ये हंसता है एंड कहता है, वेल मिस्टर टेरर, वट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन। तब ये उस खौफ से कहता है, जो इसको फियर लगता है उस समय, ये उससे कहता है कि तुम वट यू कैन डू टू मी, तुम मेरे संग क्या कर सकते हो। जैसे ही इसने उसको ये बात बोली, इट फ्लेड अवे। इट फ्लेड अवे मीन्स वो वहाँ से चले गया। फ्लेड मीन्स टू एस्केप फ्रॉम समथिंग, वो वहाँ से भाग गया। एंड ही स्वैम ऑन, और इसने अपनी स्विमिंग कंप्लीट की। येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स, लेकिन अभी भी रेसिडुअल डाउट्स बचे थे। रेसिडुअल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बची खुची होती है, मतलब जस्ट द रिमेनिंग वंस। लेकिन अभी भी शायद इसको ऐसा लगता था कि कोई हल्का फुल्का सा डाउट बचा हुआ है। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, went up the Titan to Concrete Meadows, up the Conrad Creek Trail to Meadow Glaciers, and camped in High Meadow by the side of the warm lake. The next morning, I stripped, dived into the lake, and swam across to the other shore and back, just as Doe Copron used to do. I shouted with joy, and Gilbert Peak returned the echo. I had conquered my fear of water. अब वो बचा हुआ जो रेसिडुअल डाउट था, उसको निकालने के लिए इसने क्या किया, इसने सबसे पहले जो इसको अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, जो इसको मौका मिला, जो इसको चांस मिला, ये सबसे पहले वेस्ट साइड में गया एंड वेंट अप द टाइटॉन। ओके, टाइटॉन जो है वो भी एक आइलैंड है, एंड इसको वो टाइटॉन नदी से नाम मिला है। ये वहाँ से कॉनरैड
मीडोज़ पे जाता है, कैनगॉड मीडोज़, इट्स अ फील्ड ऑफ ग्रास इन यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ जाता है अप द कॉनरैड क्रीक ट्रेल टू मीडे ग्लेशियर्स, वहाँ से ये कॉनरैड क्रीक ट्रेल पे जाता है. दिस इज़ इन फ्लोरिडा एंड इट इज़ यूज्ड फॉर हाइकिंग, वॉकिंग, रनिंग एंड बर्ड वॉचिंग. तो ये वहाँ जाता है, वहाँ से ये मीडे ग्लेशियर जाता है. मीडे ग्लेशियर, इट इज़ लोकेटेड इन द गोट रॉक्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ Washington it is. Okay, so and camped in the high meadow by the side of the warm lake, और वहाँ जाके जो सबसे हाई मीडो होती है वहाँ पे अपना कैंप लगाता है by the side of warm lake के बगल में. The next morning, अगली सुबह, I stripped, ये अपने क्लोथ्स रिमूव करता है, निकालता है, एंड डाइव्ड इनटू द लेक, और लेक में जंप लगा देता है स्विमिंग के लिए, एंड सैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक. तब ये पहले आगे तक जाता है, मूव फॉरवर्ड एंड देन कम्स बैकवर्ड, जस्ट एज डॉ कॉपरॉन यूज टू डू, जैसे कि डॉ कॉपरॉन ने किया था. अब हु इज़ डॉ कॉपरॉन? Doc Copron is the name of swimmer whose name has been mentioned in this lesson, that is deep water, and he used to swim across from one shore to the other and back. The William Douglas imitated the same to overcome his residual fears of water. और उसी को ही इसने यहाँ पे इमिटेट किया है, डगलस ने कॉपी किया है उसको. And after doing that, I shouted with joy. ये बहुत ज़्यादा खुशी से चिल्लाता है. Shouting he does, and Gilbert Peak returned the echo. और जो सबसे ऊंची पीक होती है वहाँ पे, जो सबसे ऊंची चोटी होती है वो होती है गिलबर्ट पीक की. ठीक है, तो वहाँ से गिलबर्ट पीक, इट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन गोट रॉक्स, and it was renamed Curtius Gilbert in 1949 in the honor of Yakima Boy Scout leader. So ये सबसे हाईएस्ट चोटी होती है वहाँ की, वहाँ से इसको अपनी इको सुनाई देती है. इको, you must be knowing, echo is a repeated sound as it is sent back off a surface. जो आवाज़ गूंजती हुई सुनाई देती है, जो ध्वनि गूंजती हुई सुनाई देती है किसी भी सरफेस से टच होके लौटती है, उसको हम इको कहते हैं. तो इसको अपनी इको सुनाई देती है. आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर. तब इसको टोटल 100% यकीन हो जाता है, कन्फर्मेशन हो जाता है अपने आप पे कि आज अपने जो इसको फियर ऑफ वाटर था इसने उसको कॉन्कर किया है. कॉन्कर किया है मीन्स टू टेक कंट्रोल ऑफ समथिंग. सो यहाँ पे उसने जो फियर वाली फीलिंग थी उसको कंट्रोल किया है, एंड नाउ ही इज़ हैविंग नो फियर ऑफ वाटर.